Chapter 12 Some Great People. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the contributions of some great Indians, about what we can learn from them. सीखने का उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे सीखेंगे कुछ महान भारतीयों के योगदान के बारे में. हम उनसे क्या सीख सकते हैं? इस पाठ का उद्देश्य बच्चों को उन भारतीय महापुरुषों के बारे में जानकारी देना है जिन्होंने अपने अद्वितीय कार्यों और उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित किया. साथ ही यह पाठ बच्चों को इन महान व्यक्तियों की विशेषताओं और विचारों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देगा, ताकि वे भी समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए कुछ विशेष योगदान कर सकें. India has a long history spanning over 5,000 years of human habitation and a rich cultural heritage. Many people from time to time have guided us to lead better life. They devoted their whole lives for the betterment of mankind. Their noble thoughts and deeds have made them immortal. We are proud of such Indians and we feel proud when someone calls us Indians. भारत का एक लंबा इतिहास है जो 5,000 वर्षों से अधिक का मानव निवास और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है. समय समय पर कई लोगों ने हमें बेहतर जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन किया. उन्होंने मानवता के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. उनके नोबल विचारों और कार्यों ने उन्हें अमर बना दिया है. हम ऐसे भारतीयों पर गर्व महसूस करते हैं और जब कोई हमें भारतीय कहता है तो हमें गर्व होता है. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत की संस्कृति और इतिहास कितने समृद्ध और गहरे हैं. यहाँ हजारों वर्षों से मानवता ने अपने ज्ञान और अनुभव को साझा किया है. कई महान व्यक्तियों ने समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जिससे उनकी विचारधारा और कार्य हमें प्रेरित करते हैं. ये लोग हमारे लिए आदर्श हैं और उनके योगदान के कारण हम अपने देश की पहचान को लेकर गर्व महसूस करते हैं. उनका योगदान हमें यह सिखाता है कि अच्छे कार्यों से हम समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं. Let us learn about some such great people and their exemplary lives. आइए ऐसे ही कुछ महान लोगों और उनके आदर्श जीवन के बारे में जानें. Info Zone. The first great anatomist was the ancient Roman physician, Galen, AD 129 से 199. The first great book of anatomy was written in 1543 by the Flemish scientist Andreas Wieselins, 1514 से 1564. It is called De Humani Corporis Fabrica, on structure of the human body. सूचना क्षेत्र. पहले महान शरीर रचनाविद प्राचीन रोमन चिकित्सक गैलेन 129 से 199 थे. शरीर रचना विज्ञान की पहली महान पुस्तक फ्लेमिश वैज्ञानिक एंड्रियास वेस्लिन्स 1514 से 1564 द्वारा 1543 में लिखी गई थी. इसे डी ह्यूमैनी कॉर्पोरिस फैब्रिका, मानव शरीर की संरचना पर, कहा जाता है. सुश्रुता. India was once known for its achievements in the field of medicine. In those days, the Ayurvedic system of medicine was very popular. The word Ayurveda is made of two words, Ayu and Veda. Ayu means life, age, and Veda means knowledge. So, Ayurveda means knowledge of life. Great persons like Dhanvantari, Atreya, Sushruta and Charka had done a lot in the field of medicines. Among these, the contribution of Sushruta in the field of Ayurvedic medicine is significant. Sushruta considered Dhanvantari as his guru, teacher. He was the first person to study in detail the structure of the human body.
The study of the human body is called anatomy. To study the structure of the human body, Sushruta used dead bodies. First, he used to tie the dead body to heavy load and placed it in water. After about a week, it was taken out and the dead skin was removed with the help of brush. Sushruta was an expert surgeon. He used many instruments made of iron and silver to operate the body. That is why he is called the father of Indian surgery. He did many successful operations of nose, ears, cataract and other parts of the body. भारत एक समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। उस समय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति बहुत प्रचलित थी। आयुर्वेद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु का अर्थ है जीवन, आयु, और वेद का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का ज्ञान। धन्वंतरी, आत्रेय, सुश्रुत और चरक जैसे महान व्यक्तियों ने औषधि के क्षेत्र में बहुत कुछ किया था। इनमें आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत का योगदान महत्वपूर्ण है। सुश्रुत धन्वंतरी को अपना गुरु मानते थे। वे मानव शरीर की संरचना का विस्तार से अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। मानव शरीर के अध्ययन को एनाटॉमी कहते हैं। मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करने के लिए सुश्रुत ने मृत शरीर का उपयोग किया। सबसे पहले वे शव को भारी बोझ से बांधकर पानी में रखते थे। लगभग एक सप्ताह बाद शव को बाहर निकाला जाता था और ब्रश की सहायता से मृत त्वचा को हटाया जाता था। सुश्रुत एक विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक थे। उन्होंने शरीर के संचालन के लिए लोहे और चांदी से बने कई उपकरणों का इस्तेमाल किया। इसीलिए उन्हें भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उन्होंने नाक, कान, मोतियाबिंद और शरीर के अन्य अंगों के कई सफल ऑपरेशन किए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत एक समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। उस समय आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली बहुत लोकप्रिय थी। भारत की चिकित्सा प्रणाली, आयुर्वेद, का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का ज्ञान, जहाँ आयु का मतलब जीवन और वेद का मतलब ज्ञान है। महान व्यक्तियों जैसे धन्वंतरी, आत्रेय, सुश्रुत और चरक ने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। इनमें से सुश्रुत का योगदान आयुर्वेदिक चिकित्सा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किया और इसे एनाटमी कहा जाता है। सुश्रुत ने मृत शरीरों का उपयोग करके मानव शरीर का अध्ययन किया, जिसके लिए उन्होंने मृत शरीर को भारी बोझ से बांधकर पानी में रखा और एक हफ्ते बाद उसे निकाला। इसके बाद उन्होंने मृत त्वचा को ब्रश की मदद से हटाया। सुश्रुत एक कुशल सर्जन थे और उन्होंने कई प्रकार के शल्यक्रियाएं की, जिसमें नाक, कान, मोतियाबिंद आदि के ऑपरेशन शामिल हैं। इसी कारण उन्हें भारतीय सर्जरी के पिता के रूप में जाना जाता है। The modern plastic surgery for facial beautification is also a contribution of Sushruta's work. Sushruta's findings and experiences have been compiled in a book called Sushruta Sanghita. The book has information about bones and muscles of the human body and about 100 instruments related to surgery. Sushruta's contributions to the field of medicine made him immortal. आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी, जो चेहरे की सुंदरता के लिए होती है, यह भी सुश्रुत के कार्य का एक योगदान है। सुश्रुत के निष्कर्षों और अनुभवों को सुश्रुत संहिता नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। इस पुस्तक में मानव शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में जानकारी है और सर्जरी से संबंधित लगभग 100 उपकरणों के बारे में भी जानकारी है।
चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत के योगदान ने उन्हें अमर बना दिया। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सुश्रुत, जिनका योगदान चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय है, ने न केवल आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उनकी खोजें और अनुभव सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक में संकलित किए गए। यह पुस्तक मानव शरीर की संरचना, विशेष रूप से हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। साथ ही इसमें लगभग 100 सर्जिकल उपकरणों का विवरण भी है, जो सर्जरी के क्षेत्र में सुश्रुत के ज्ञान को दर्शाते हैं। उनके कार्यों ने न केवल उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में महानतम बनाया गया, बल्कि उनकी विरासत को अमर भी किया। Info Zone. Surgeons think that they will soon be able to do head transplants. सूचना क्षेत्र। सर्जनों को लगता है कि वे जल्द ही सिर प्रत्यारोपण करने में सक्षम हो जाएंगे। राजा राम मोहन रॉय। India has produced so many great social reformers that it is not possible for us to describe all of them. Here, we will learn about the contributions made by Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was born on 22 May 1772 in a wealthy Brahman family. He was born at Radhanagar village in Bengal. His father's name was Ram Kant and mother's name was Tarini Devi. The Nawab of Bengal conferred the title of Roy to Raja Ram Mohan Roy's ancestors. The childhood name of Raja Ram Mohan Roy was Ram Bapu. He got his early education in his native village. He learnt Bengali in his village school. Then he went to Patna to learn Persian and Arabic. He moved to Banaras to study Sanskrit. He started learning English at the age of 22. He had also good knowledge of Latin, Greek, Hebrew and French. भारत ने कई महान सामाजिक सुधारकों को जन्म दिया है, इसलिए उनके सभी योगदानों का वर्णन करना संभव नहीं है। यहाँ हम राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए योगदानों के बारे में जानेंगे। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को एक धनवान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म बंगाल के राधानगर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम रामकांत और मां का नाम तारिणी देवी था। बंगाल के नवाब ने राजा राम मोहन राय के पूर्वजों को राय का खिताब दिया था। राजा राम मोहन राय का बचपन का नाम राम बापू था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में प्राप्त की। उन्होंने अपने गांव के स्कूल में बंगाली सीखी। फिर उन्होंने पटना जाकर फारसी और अरबी सीखी। वे संस्कृत पढ़ने के लिए वाराणसी चले गए। उन्होंने 22 साल की उम्र में अंग्रेजी सीखना शुरू किया। उन्होंने लैटिन, ग्रीक, हिब्रू और फ्रेंच की भी अच्छी जानकारी प्राप्त की। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत के महान सामाजिक सुधारकों में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ, जो उनके शिक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उनका प्रारंभिक जीवन बंगाल के राधानगर में बीता, जहां उन्होंने बंगाली भाषा सीखी। इसके बाद उन्होंने विभिन्न भाषाओं जैसे फारसी, अरबी, संस्कृत और अंत में अंग्रेजी में निपुणता हासिल की। उनकी शिक्षा का यह विविधता उन्हें एक बहुभाषीय विद्वान बनाती है, जो आगे चलकर समाज सुधार के क्षेत्र में उनके योगदान को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। राजा राम मोहन राय के योगदान भारतीय समाज में सुधार और जागरूकता लाने के लिए उल्लेखनीय हैं। Info Zone. The first organization started by Raja Ram Mohan Roy was called Atmiya Sabha, 1814. Raja Ram Mohan Roy began his reform activity by preaching the unity of God through his books Gift to Monothesis and Percepts of Jesus. सूचना क्षेत्र।
राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया पहला संगठन आत्मीय सभा 1814 कहलाता था। राजा राम मोहन राय ने अपनी सुधार गतिविधि की शुरुआत अपनी पुस्तकों गिफ्ट टू मोनोथिसिस और परसेप्ट्स ऑफ जीसस के माध्यम से ईश्वर की एकता का प्रचार करके की। राजा राम मोहन रॉय was against these social evils since his childhood. In those days, social evils like child marriage, practice of sati and casteism were very common. Raja Ram Mohan Roy very strongly opposed the practice of sati. When Jagmohan Roy, the elder brother of Raja Ram Mohan Roy, died, his wife decided to follow the ritual of sati. Raja Ram Mohan Roy tried his best to stop her from doing so, but she jumped on the burning pyre of her husband. When she felt pain due to burning, she tried to come out of the pyre, but people there pushed her back onto the pyre. The incident had a very deep effect on the mind of young Raja Ram Mohan Roy. That day, he decided to eradicate this evil from the society. He succeeded in his objective when the British government made a law to stop the practice of sati. राजा राम मोहन राय बचपन से ही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ थे। उन दिनों बाल विवाह, सती प्रथा और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयां बहुत आम थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का बहुत सख्ती से विरोध किया। जब राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन राय का निधन हुआ, तो उनकी पत्नी ने सती की रस्म निभाने का निर्णय लिया। राजा राम मोहन राय ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपने पति की जलती चिता पर कूद गई। जब उन्हें जलने के कारण पीड़ा महसूस हुई, तो उन्होंने चिता से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन्हें वापस चिता पर धकेल दिया। इस घटना ने युवा राजा राम मोहन राय के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसी दिन उन्होंने समाज से इस बुराई को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की जब ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राजा राम मोहन राय ने अपने बचपन से ही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक दृढ़ रुख अपनाया। उस समय समाज में व्याप्त कई बुराइयां, जैसे बाल विवाह और सती प्रथा, आम थी, जो लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही थी। जब उनके भाई की पत्नी ने सती प्रथा का पालन करते हुए अपनी जान दी, तो इस घटना ने युवा राजा राम मोहन राय के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने समाज में फैली इस बुराई को समाप्त करने की ठानी। उनकी संघर्षशीलता और प्रयासों ने सती प्रथा के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने इसे समाप्त करने के लिए कानून बनाया। राजा राम मोहन राय का यह कार्य न केवल उन्हें एक महान सुधारक बनाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वे अपने समाज के लिए कितने समर्पित थे। राजा राम मोहन रॉय was a great scholar. He wanted the Indians to learn English. He believed that English would help them benefit from the progress made by the Western countries in science and technology. He started an Anglo-Indian school, where English language was introduced as a subject. राजा राम मोहन राय एक महान विद्वान थे। वह चाहते थे कि भारतीय अंग्रेजी सीखें। उन्होंने विश्वास किया कि अंग्रेजी से भारतीयों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पश्चिमी देशों द्वारा किए गए विकास का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। उन्होंने एक एंग्लो इंडियन स्कूल की स्थापना की, जहां अंग्रेजी भाषा को एक विषय के रूप में शामिल किया गया। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राजा राम मोहन राय ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह केवल सामाजिक सुधारक ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी विद्वान भी थे, जिन्होंने भारतीयों की शिक्षा में अंग्रेजी के महत्व को पहचाना। उन्होंने देखा कि पश्चिमी देशों में विज्ञान और तकनीकी में हो रहे विकास को समझने और अपनाने के लिए अंग्रेजी भाषा आवश्यक है।
इस सोच के साथ उन्होंने एक एंग्लो इंडियन स्कूल की स्थापना की, जहां अंग्रेजी भाषा को पढ़ाया गया। यह कदम न केवल शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायक था, बल्कि भारतीयों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम बनाने का भी प्रयास था। To eradicate unnecessary religious practices, Raja Ram Mohan Roy formed an organization called the Brahmo Samaj in 1828. The followers of the Brahmo Samaj believed in one God. They were against the caste system in the society. Raja Ram Mohan Roy made efforts to improve the economic conditions of the Indians. अनावश्यक धार्मिक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मो समाज नामक एक संगठन की स्थापना की। ब्रह्मो समाज के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। वे समाज में जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। राजा राम मोहन राय ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी प्रयास किए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राजा राम मोहन राय ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए ब्रह्मो समाज की स्थापना की। उन्होंने देखा कि धार्मिक अंधविश्वास और अनावश्यक प्रथाएं भारतीय समाज को पीछे की ओर धकेल रही थी, इसलिए उन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज का गठन किया। इस संगठन के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, जो कि हिंदू धर्म की पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं के विपरीत था। इसके अलावा उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ भी आवाज उठाई, जिससे समाज में समानता की भावना को बढ़ावा मिला। राजा राम मोहन राय का उद्देश्य केवल धार्मिक सुधार करना ही नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीयों की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए। उनके प्रयासों ने न केवल समाज को जागरूक किया, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान किया, जिससे लोगों को अपने अधिकारों और शिक्षा की आवश्यकता का एहसास हुआ। राजा राम मोहन रॉय wanted to visit European countries to study the political systems of those countries. But traveling by sea was considered to be against the prevailing religious belief in those days. He went to England by sea in spite of the existing beliefs. राजा राम मोहन राय यूरोपीय देशों में जाकर उन देशों की राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन उस समय समुद्र यात्रा को प्रिवेलिंग धार्मिक विश्वासों के खिलाफ माना जाता था। उन्होंने मौजूदा विश्वासों के बावजूद समुद्र के रास्ते इंग्लैंड की यात्रा की। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राजा राम मोहन राय ने अपने ज्ञान को बढ़ाने और यूरोप के राजनीतिक तंत्र को समझने के लिए इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया। हालांकि उस समय समुद्र यात्रा को धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ समझा जाता था, फिर भी उन्होंने अपने संकल्प को मजबूत रखते हुए इस यात्रा को किया। यह उनके साहस और विचारों की स्वतंत्रता को दर्शाता है। उनकी यह यात्रा न केवल उनके लिए एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी, बल्कि यह भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए उनके प्रयासों का हिस्सा भी थी। At that time, Akbar Shah too was the Mughal Emperor of India. He wanted an increase in his salary and allowances from the East India Company. He approached Raja Ram Mohan Roy to plead his case with the rulers. Akbar Shah too also conferred upon him the title of Raja, but the East India Company refused to recognize this title. This great son of India expired at Bristol on 27 September 1833. We shall always remember him for his good deeds to mankind. उस समय अकबर शाह टू भारत के मुगल सम्राट थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी वेतन और भत्ते में वृद्धि चाहते थे। उन्होंने राजा राम मोहन राय से उनकी बात को रूलर्स के समक्ष रखने के लिए संपर्क किया। अकबर शाह टू ने राजा राम मोहन राय को राजा का खिताब भी दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस खिताब को मान्यता देने से इनकार कर दिया।
यह महान भारतीय 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में निधन हो गए। हम हमेशा उन्हें मानवता के प्रति उनके अच्छे कार्यों के लिए याद करेंगे। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अकबर शाह II, जो मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे, ने राजा राम मोहन राय से मदद मांगी। वे अपने वेतन और भत्तों में वृद्धि की कोशिश कर रहे थे और राजा राम मोहन राय ने उनके लिए इस मामले को उठाने का काम किया। हालांकि अकबर शाह II द्वारा दिए गए खिताब को ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वीकार नहीं किया, जो उस समय के कॉलोनियल शासन का प्रतीक था। राजा राम मोहन राय का निधन 1833 में हुआ, लेकिन उनके कार्य और योगदान हमेशा याद किए जाएंगे। वे भारतीय समाज में सुधार के प्रति अपने समर्पण और मानवता की भलाई के लिए जाने जाएंगे। उनके प्रयासों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और वे एक प्रेरणा स्रोत बने। Info Zone. The practice of sati was banned by Lord William Bentinck in 1839. To spread modern education, Raja Ram Mohan Roy set up an English school, a Vedanta college and helped David Hare in setting up Hindu college. सूचना क्षेत्र। सती प्रथा पर 1839 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रतिबंध लगा दिया था। आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय ने एक अंग्रेजी स्कूल, एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की और हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर की मदद की। M.S. सुब्बुलक्ष्मी। I accept the award in all humility. This was M.S. Subbulakshmi's first reaction on hearing that the Bharat Ratna, the nation's highest award, had been conferred on her in 1997. She is the most honored and acclaimed Carnatic vocalist. She is so devoted to her art and its divinity that her achievements and honors matter little to her. मैं यह पुरस्कार सभी विनम्रता में स्वीकार करती हूँ। यह M.S. सुब्बुलक्ष्मी की पहली प्रतिक्रिया थी जब उन्हें 1997 में भारत रत्न, देश का सर्वोच्च पुरस्कार, प्रदान किया गया। वह सबसे सम्मानित और प्रशंसित कर्नाटिक गायिका है। वह अपने कला और उसकी दिव्यता के प्रति इतनी समर्पित है कि उनके उपलब्धियां और सम्मान उनके लिए बहुत मायने नहीं रखते। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि M.S. सुब्बुलक्ष्मी, एक महान कर्नाटिक गायिका, को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी विनम्रता उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जैसा कि उन्होंने पुरस्कार स्वीकार करते समय व्यक्त किया। सुब्बुलक्ष्मी की कला के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और समर्पण उन्हें एक अद्वितीय स्थान देती है। उनके लिए पुरस्कार और सम्मान का महत्व तब भी कम है जब वह अपनी कला के प्रति अपने दायित्व को निभाने में लगी रहती हैं। यह उनके अनुकरणीय दृष्टिकोण को दर्शाता है कि उन्होंने अपनी कला को कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ से अधिक महत्व दिया। M.S., as she is affectionately called, was born in the temple town of Madurai in Tamil Nadu on 16 September 1916. Subbulakshmi's mother was a distinguished veena player. She gave her daughter a name that means, the auspicious goddess of wealth. M.S. Subbulakshmi gave her first recital when she was only 10 years old, and by the time she was 17, she had begun to give major performances. In 1947, Subbulakshmi played the lead role in the film Meera, made in Hindi and Tamil. Millions of people all over the country responded to her matchless golden voice. M.S., जैसा कि उन्हें स्नेहपूर्वक बुलाया जाता है, 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै नामक मंदिर नगर में जन्मी थी। सुब्बुलक्ष्मी की मां एक प्रमुख वीणा वादक थी। उन्होंने अपनी बेटी को ऐसा नाम दिया जिसका अर्थ है धन की शुभ देवी, M.S. सुब्बुलक्ष्मी ने केवल 10 वर्ष की आयु में अपना पहला प्रदर्शन दिया,
और 17 वर्ष की उम्र तक उन्होंने प्रमुख प्रदर्शन देना शुरू कर दिया था। 1947 में सुब्बुलक्ष्मी ने हिंदी और तमिल में बनी फिल्म मीरा में मुख्य भूमिका निभाई। देश भर में लाखों लोगों ने उनकी बेजोड़ सुनहरी आवाज का स्वागत किया। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का जन्म मदुरै में हुआ, जो एक धार्मिक स्थल है, और उनका परिवार संगीत के प्रति समर्पित था। उनकी मां की वीणा वादन में विशेषज्ञता ने सुब्बुलक्ष्मी को कला के प्रति प्रेरित किया। केवल 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि उनमें अपार प्रतिभा है। 17 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने बड़े मंचों पर प्रदर्शन देना शुरू कर दिया, जिससे उनकी प्रसिद्धि तेजी से बढ़ी। 1947 में फिल्म मीरा में मुख्य भूमिका ने उन्हें और अधिक लोकप्रियता दिलाई। उनकी सुनहरी आवाज ने न केवल उनके दर्शकों का दिल जीता, बल्कि उन्होंने भारतीय संगीत के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित की। उनके संगीत ने लोगों को जोड़ने और भावनाओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू described her as a contemporary Meera and announced, "From today, I surrender to Subbulakshmi, the enchanting singer with an enchanting voice, my title the Nightingale of India." M.S. Subbulakshmi was honored with the Padma Bhushan in 1954, the Madras Music Academy's coveted title of Sangeeta Kalanidhi in 1969, the Magsaysay Award in 1974 and the Padma Vibhushan in 1975. M.S. Subbulakshmi sang at the General Assembly of the United Nations and before the Queen of England at the Royal Albert Hall in London. It was the late T. Sadashivam, her husband, guru and guide who, after their marriage in 1940, largely helped M.S. reach such heights of excellence. Besides Carnatic music, M.S. also excels in Hindustani light devotional songs. सरोजिनी नायडू ने उन्हें समकालीन मीरा के रूप में वर्णित किया और घोषणा की, आज से मैं सुब्बुलक्ष्मी, उस मोहक आवाज वाली गायक के सामने अपना शीर्षक भारत की नाइटिंगेल समर्पित करती हूँ। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को 1954 में पद्म भूषण, 1969 में मद्रास संगीत अकादमी का प्रतिष्ठित शीर्षक संगीता कलानिधि, 1974 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में और लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में इंग्लैंड की रानी के सामने गाया। यह उनके पति, गुरु और मार्गदर्शक दिवंगत टी. सदाशिवम थे, जिन्होंने 1940 में शादी के बाद एम.एस. को इस तरह की ऊंचाइयों तक पहुंचने में काफी मदद की। कर्नाटकी संगीत के अलावा एम.एस. हिंदुस्तानी भक्तिगीतों में भी उत्कृष्टता हासिल करती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सुब्बुलक्ष्मी की प्रतिभा को अन्य महान व्यक्तित्वों ने भी मान्यता दी, जैसे कि सरोजिनी नायडू, जिन्होंने उन्हें भारत की नाइटिंगेल की उपाधि दी। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो उनकी कला के प्रति समाज की मान्यता को दर्शाते हैं। उनकी उपलब्धियों में यूएन महासभा में गाना और इंग्लैंड की रानी के समक्ष प्रस्तुति देना शामिल है, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता की पुष्टि करता है। उनके पति टी. सदाशिवम ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि उनके करियर में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे वह अपने संगीत में उत्कृष्टता हासिल कर सकीं। इसके अलावा हिंदुस्तानी संगीत में भी उनकी दक्षता यह दर्शाती है कि उनका संगीत केवल एक शैली तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने विभिन्न शैलियों में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। इस प्रकार एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने भारतीय संगीत में एक अमिट छाप छोड़ी है। इन्फो जोन।
M.S. Subbulakshmi is often called the Melody Queen. Indian music finds its origin in the Samveda, one of the four Vedas of the Hindus. The seven major notes or swaras of Indian music are Sa, Rupya, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni attributed to different birds and animals. सूचना क्षेत्र M.S. सुब्बुलक्ष्मी को अक्सर मेलोडी क्वीन कहा जाता है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति हिंदुओं के 4 वेदों में से एक सामवेद में पाई जाती है। भारतीय संगीत के 7 प्रमुख स्वर या स्वर सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी हैं, जो विभिन्न पक्षियों और जानवरों से जुड़े हैं। Mahatma Gandhi once wanted to hear a particular bhajan in the voice of M.S. Subbulakshmi. The bhajan was Hari Tum Haro. M.S., not knowing the bhajan, suggested that someone else sing it. On hearing this, Gandhiji said, "I would rather hear the words of the bhajan spoken by Subbulakshmi than sung by anyone else." Jawaharlal Nehru was no less enchanted by her sublime voice. He said, "Who am I before this melody queen, mere Prime Minister? And what right have I, or anyone else, to speak when she is there to sing?" In these famous tributes lie the secret of the M.S. magic. To her, music is a form of bhakti, spiritual expression and an offering to the divinity. महात्मा गांधी ने एक बार M.S. सुब्बुलक्ष्मी की आवाज में एक विशेष भजन सुनने की इच्छा व्यक्त की। वह भजन था हरि तुम हरो। M.S. ने इस भजन को नहीं जानने के कारण किसी और को इसे गाने का सुझाव दिया। यह सुनकर गांधी जी ने कहा, "मैं सुब्बुलक्ष्मी द्वारा भजन के शब्द सुनना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि कोई और इसे गाए।" जवाहरलाल नेहरू भी उनकी दिव्य आवाज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा, "मैं इस रागिनी रानी के सामने कौन हूँ, एक साधारण प्रधानमंत्री? और जब वह गा रही हैं, तो मेरे या किसी और के पास बोलने का क्या अधिकार है?" इस पैराग्राफ में बताया गया है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे महान व्यक्तियों ने M.S. सुब्बुलक्ष्मी की प्रतिभा को कितनी ऊंचाई दी। गांधी जी ने भक्ति में विश्वास रखते हुए सुब्बुलक्ष्मी की आवाज को इतना महत्वपूर्ण माना कि उन्होंने भजन के शब्दों को सुनने की इच्छा जताई, बजाय इसके कि कोई और गाए। इसी तरह नेहरू ने उनकी संगीत कला की महानता को स्वीकार करते हुए अपने पद को भी तुच्छ समझा। यह दर्शाता है कि M.S. की आवाज और संगीत ने लोगों के दिलों में कितनी गहराई से जगह बनाई थी। M.S. सुब्बुलक्ष्मी के लिए संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि यह भक्ति का एक रूप था, एक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति और दिव्यता के प्रति एक समर्पण। उनकी संगीत में निहित यह भक्ति और समर्पण ही M.S. जादू का रहस्य है, जो उन्हें अद्वितीय बनाता है और आज भी उनके प्रशंसकों के दिलों में जीवित है। 17 जनवरी 2001 was a very special day in the Karnataka classical music when M.S. was given a national award by Ram Seva Mandal in Bangalore. Subbulakshmi is the first woman to have received this prestigious award. Earlier to this day, Karnataka classical music was dominated by men only. For the last few years, Subbulakshmi has stopped participating in concert. At present, she is staying in Chennai. She is fondly called Kunjamma by her close friends. She is, in fact, a living legend. 17 जनवरी 2001 एक बहुत खास दिन था कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के लिए, जब M.S. को राम सेवा मंडल द्वारा बंगलौर में एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। सुब्बुलक्ष्मी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। इस दिन से पहले कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में पुरुषों का प्रभुत्व था। पिछले कुछ वर्षों से सुब्बुलक्ष्मी ने संगीत कार्यक्रमों में भाग लेना बंद कर दिया है। वर्तमान में वह चेन्नई में रह रही हैं। उनके करीबी दोस्त उन्हें प्यार से कुंजम्मा कहते हैं। वह वास्तव में एक जीवित किंवदंती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि 17 जनवरी 2001 को M.S. सुब्बुलक्ष्मी को एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला,
जो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह पुरस्कार प्राप्त करना सुब्बुलक्ष्मी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वह पहली महिला हैं जिन्हें यह सम्मान मिला। इससे यह स्पष्ट होता है कि कैसे पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में उन्होंने अपनी अद्वितीयता साबित की। पिछले कुछ वर्षों से संगीत कार्यक्रमों में उनकी अनुपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि वह अपने कला करियर को संतोषजनक तरीके से समाप्त करना चाहती हैं। कुंजम्मा के नाम से पुकारे जाने से यह भी दिखता है कि वह अपने करीबी दोस्तों के बीच कितनी प्रिय हैं। वास्तव में उनका जीवन और उनकी उपलब्धियां उन्हें एक जीवित किंवदंती बनाती हैं, जो संगीत प्रेमियों के दिलों में सदैव जीवित रहेंगी। टू रिमेंबर, सुश्रुता was great surgeon of ancient India. Raja Ram Mohan Roy helped in abolishing the practice of sati and child marriage. Raja Ram Mohan Roy founded the Brahmo Samaj in 1828. M.S. Subbulakshmi is an exponent of Carnatic music. M.S. Subbulakshmi was awarded Bharat Ratna in 1997. याद रखने के लिए, सुश्रुत प्राचीन भारत के महान सर्जन थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और बाल विवाह को समाप्त करने में मदद की। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। M.S. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटिक संगीत की एक विशेषज्ञ हैं। M.S. सुब्बुलक्ष्मी को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सुश्रुत, राजा राम मोहन राय और M.S. सुब्बुलक्ष्मी जैसे महान भारतीयों का योगदान हमारे समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण है। सुश्रुत ने चिकित्सा में महत्वपूर्ण कार्य किया, जबकि राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाई। M.S. सुब्बुलक्ष्मी ने संगीत के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय प्रतिभा से लोगों का दिल जीता और उन्होंने देश का नाम रोशन किया। उनके कार्य और उपलब्धियों से हमें प्रेरणा मिलती है